Besides playing games, you can also use a computer to draw pictures or color the pictures. Look, Rennie, this is a computer. Kliko, the computer seems to have many parts in it. Yes, Rennie, a computer is made up of different parts. The monitor, the CPU, the keyboard, and the mouse are four major parts of a computer. All these parts are very important. Please tell me how these parts are important for a computer. Sure, Renee. Let's start with the monitor. The monitor has a screen and it looks like a TV. It displays the output, whatever work is done or instruction is given on the screen. This board with alphabets and numbers on it is called the keyboard. The big and small buttons on it are called keys. Using these keys, we can write letters. We can make reports and presentations and also play movies and songs. What is the CPU? It looks like a big box. The CPU is the central part of the computer. It is also called the brain of the computer. The CPU tells the computer what to do. What does CPU means, Kliko? CPU stands for Central Processing Unit. It is the most important part of the computer. What does a CPU do in a computer, Kliko? A CPU guides and helps the computer to perform different functions quickly and easily. The CPU is placed inside a box called the system unit. What is this, Kliko? It has a wire attached to it and if like a tail. It looks like a mouse. It is a mouse, Rennie. A mouse? How can it be? It is not a living thing. It is a computer mouse, Rennie. Look, it has two buttons on it and a scroll wheel at the center. It also has a small ball on the bottom, which moves the mouse pointer on the screen. How does it help us, Kliko? A mouse helps us to select any folder or content from the computer screen. For better movement, the mouse should be kept over a mouse pad. I have seen Uncle Ravi's computer. He has lot of other things attached to the computer beside the mouse, keyboard or the CPU. What are those, Kliko? Yes, Rini, you can add other parts to a computer if you require. Some of them are speakers, printers, joysticks and UPS. These parts are called a computer's peripheral devices. Tell me more about them. Speakers are used to listen to songs, voice, speech and sounds through a computer. A printer helps to print out documents on a sheet of paper. A joystick is used to move the cursor. It generally has 3 or 4 buttons. It helps us in playing video games on the computer. A UPS helps us to save our work safely when there is a sudden electricity cut. UPS stands for Uninterrupted Power Supply. Thank you, Kliko, for all your help. It is getting late now. I think I have to go now. Sure, Rennie. We will meet tomorrow and I will let you know more about computers. Okay, students.
You all see the video? All saw the video? How was the video? What you understand about the video? Tell me one by one. In a chat box. In a video, computer is talking about which? Okay. Shall we start with chapter number 1, uses of computer. In this chapter, we will discuss 3 parts: computer in different areas, uses of computer in different fields, and robots. Computer is in different areas. What is mean by this? Write in a chat box that what you understand about this topic, that computer in different areas. What you understand when you read this word computer in different areas. Read this sentence. Kindly write in a chat box that I will read your answers. Write in a chat box. When we read this chapter, we will discuss uses of computer science in different areas, how use a computer. Through the video, you people know about how to use the computer and what is the part of computer, how many parts of computer and which part is used for which purpose. This fourth one is what is meant by the term robots. Everyone hear the everyone hear me? Kindly react with thumbs up. Okay. Now we will start today's topic. Today's topic is computer in different areas. Everybody know that nowadays computer is used in every field and in every area. Computer in different areas mean in every field of work computer is used. Like computer are used in different areas which are as follows: in your home, at home, in your school, in making films, in space technology, in banks, in designing, in shops and hotels. I'm sorry. In computer controlled areas, in robots, in airline and railway stations, and in offices. So, first topic, after this topic, we will discuss the first point: computer is used in home. So, at home, computer are used at home for the following purposes: playing games, listening to music, performing calculation, storing addresses and telephone numbers, keeping track of monthly expenses, writing letters, and watching movies. फॉर एंटरटेनमेंट प्लेइंग गेम्स इज यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट. आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी घर में बोर होते हो, ठीक है, या आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप लोग क्या करते हो, आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो और उस पर कोई भी गेम स्टार्ट कर देते हो. लाइक इन योर मोबाइल फोन ऑल्सो यू कैन प्ले गेम्स. why you use mobile phone for play games? Because mobile is also a computer machine na, and you play games on mobile phone also. Computer is also a machine. तो क्या होता है कि हम लोगों को जब भी हम लोगों को ज़रूरत होती है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. नाउ डेज आप लोग लॉकडाउन के अंदर घर में ही रह रहे हैं, ठीक है, तो घर में अब आप लोग पूरा दिन आपके पास तो नहीं होता कुछ करने के लिए, तो जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप लोग क्या करते हो, गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हो. तो ये एक यूज़ हो गया आपके पास कंप्यूटर का घर के अंदर, यानी कि घर के अंदर आप लोग कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हो? फॉर प्लेइंग गेम्स.
एंड द सेकंड थिंग इज लिसनिंग टू म्यूजिक. अब सब बच्चे को तो गेम खेलना पसंद नहीं होता. एवरीवन डोंट लाइक टू प्ले गेम. सो क्या करते हैं वो, लिसनिंग टू म्यूजिक. वो म्यूजिक को म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक मुझे देख ले, मैं भी अगर कभी बोर हो रही हूँ तो मैं भी घर में म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देती हूँ. एंड द थर्ड वन इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. अगर मुझे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, लाइक अगर मुझे अब एक बड़ा नंबर है मेरे पास, ठीक है, एक बड़ी कैलकुलेशन है और मुझे वो परफॉर्म करनी है, तो अब मैं खुद से तो नहीं कर सकती. तो मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है, उसे यूज करना स्टार्ट करती हूँ और उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हूँ. स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स. बहुत से जो घरों में जो मदर्स होती हैं वो क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर नोटपैड होता है, उसके अंदर वो क्या करती हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं या वर्ड के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं वो बाय नेम स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं. इससे क्या होता है कि वो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सेव रहता है, वो इंफॉर्मेशन फ्यूचर यूज के लिए भी हम लोगों के पास अवेलेबल होती है. द फिफ्थ वन इज कीप ट्रैकिंग ऑफ मंथली एक्सपेंसेस. बहुत से जो फादर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि अपनी जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने पास उनका जो बिल वगैरह होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. बाय ईमेल जो उन्हें रिसीव होता है वो उसके अंदर डाउनलोड करके उसको स्टोर कर लेते हैं. राइटिंग लेटर्स. अगर आप लोगों ने किसी को भी कोई भी लेटर लिखना होता है तो आप लोग लेटर्स क्या करते हो, कंप्यूटर को यूज करते हो और लेटर राइट करते हो वर्ड के ऊपर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसे सेव कर लेते हो. And the big use of computer is watching movies at home. You can watch movies on computer. Nowadays many of the children watch movies, cartoons and animation movies on computer. तो हमारे पास इस तरह का कंप्यूटर के यूज़ एट होम बहुत से यूजेस आ जाते हैं. ठीक है, जिसके अंदर कुछ यूजेस मैंने आपको बताया और कुछ यूजेस अब आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताने हैं कि आप लोग इसके अलावा कौन कौन से यूजेस घरों कंप्यूटर के यूजेस एट होम हैं. तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो कि क्या क्या इसके अलावा जो मैंने यूजेस बताए हैं इसके अलावा क्या क्या यूजेस कंप्यूटर के होते हैं. think about it, that what is the use of computer at home. We'll give you 2 minutes. Write in a chat box. Use a drawing. Very good, very good. Daim Rashid, give me an answer that use for drawing. Mutahir giving me answer, saying picture, saving picture, playing games, watching video, text messages also. To email or friend. Very good. Use drawing. Aisha Manan also answer me that computer is used for use drawing, text writing mails, write stories. Very good. Watching cartoons. Very good. To email. Very good. Taishezad. Very good. Thank you for your response. So these are the uses of computer at home. Now we can discuss the uses of computer in schools. First, I ask from you people that what is the use of computer in school? You can write in a chat box that why computer is used in school. What is the purpose of computer in school? You can think and answer. Why computer is used in school? Don't copy my slides, okay? Think yourself. Think by yourself and then answer me. For drawing, okay. For performing practicals, for practice, to study, very good. To do activities, very good. For writing, very good. And preparing reports card, very good. Okay, now I will tell you that computers are used in school by teachers for the following purpose. The first purpose is preparing lessons. Okay, now tell me that you see in your screen, what you see? A PowerPoint presentation, right? And computer is used for making lessons or preparing lessons.
I prepare this lesson for you people by use of computer. So this is the big use of computer in schools, that teacher use computer for preparing lesson plans and teaching different subject from the internet. इसके अलावा क्या होता है कि फ्रॉम द इंटरनेट जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ और आप लोगों को ये वाला जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू अवेलेबल। अगर मेरे पास कंप्यूटर ना होता तो क्या मैं अवेलेबल होती आप लोगों को इस टाइम पढ़ाने के लिए? नहीं। तो द सेकेंड यूज ऑफ कंप्यूटर इज टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। द थर्ड वन इज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स। आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी क्या होता है? कंप्यूटर यूज होता है। तो द थर्ड यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल इज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट ऑल्सो यूज कंप्यूटर। इसके अलावा टीचर्स के अलावा स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को यूज करते हैं स्कूल में फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास आपको जो भी टीचर आप लोगों को एक्टिविटी देती हैं, जो भी प्रोजेक्ट देती हैं, आप लोगों को वो कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। और कंप्यूटर इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, तो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। एंड द सेकेंड वन इज़ लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट। अब आप लोग क्या कर रहे हो? पहले आपने साइंस का लेक्चर लिया बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू ही आपने साइंस का लेक्चर लिया। उसके बाद अब आपने कंप्यूटर का लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उर्दू का लेक्चर लेंगे। तो अगर आपके पास घर में कंप्यूटर ना होता तो क्या आप इस वक्त कंप्यूटर या साइंस या कोई भी लेक्चर ले सकते थे? नहीं। तो दिस इज द बिग यूज ऑफ कंप्यूटर। और इसी तरीके से स्कूल में भी क्या होता है? स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवाना होता है या सब्जेक्ट कंटिन्यू करवाने होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। Now the third point is in making films. How many students watch movies? How many students watch movies? Raise your hand. Raise your hand with react. Very good, Ibad. Matthew Khalid, very good. Sayyid Ali Akbar, very good. Okay. Now we'll discuss that in making films, earlier creating animation films used to difficult tasks. अर्लियर मीन पहले, इसका मतलब है कि पहले क्या होता था? क्रिएटिंग एनिमेशन फिल्म्स यूज टू बी डिफिकल्ट टास्क, कि एनिमेशन मूवीज बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था। ईच पिक्चर इन अ सीक्वेंस हैड टू बी ड्रॉन बाय हैंड। तो हमारे पास कंप्यूटर तो अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास हम लोग ड्राइंग करते थे बाय हैंड, ठीक है। और हर पिक्चर का कितना सीक्वेंस था, हमने किस तरीके से उसको रिएक्ट करवाना है, किस तरीके से उसकी एनिमेशन मूवमेंट होगी, किस तरीके से उसको हमने कितना साइज रखना है, ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉन बाय हैंड। बट टुडे computer have made it really easy to make cartoon films and other animation, but nowadays we do this task on computer. On computer we can draw cartoons and we create animations and we create objects. Animations क्या होती हैं? What is animations? आप लोगों को मैंने बताया कि एनिमेशन मूवी होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैंने एनिमेशन मूवीज बताया तो कितने स्टूडेंट्स को पता है? रेज योर हैंड दैट एनिमेशन मूवीज क्या होती हैं। व्हाट इज एनिमेशन? व्हाट इज मीन बाय एनिमेशन? एनिमेशन कार्टून तो होते हैं, लेकिन एनिमेशन कौन से कार्टून होते हैं? एनिमेशन मूवीज भी होती हैं आपके पास। ओके, कार्टून्स के अंदर भी एनिमेशन होती है। एनिमेशन क्या होती है? Will tell you. Animation is a technique of giving object the appearance of the movement by rapidly running a series of images of the object or the character in different position. आप देखते हो कि कार्टून्स के अंदर कार्टून मूवमेंट करते हैं। अब देखो कि कार्टून खुद तो मूवमेंट नहीं करते। जब कार्टून्स को बनाया जाता है वो एक इमेज होती है, ठीक है। एक आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको क्या करते हैं कि आप लोग मूवमेंट करवाते हैं, आप लोग उसके ऊपर एनिमेशंस अप्लाई करते हैं। तो एनिमेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से क्या करते हैं कि हम अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपीयरेंस करवाते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट किस वक्त कहाँ पे मूव करेगा। जब हम लोग कार्टून बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग डोरेमोन देखते हो, डोरेमोन इज अ कैरेक्टर, ठीक है। अब वो एक ऑब्जेक्ट था,
ऑब्जेक्ट के अंदर उसको क्या, पहले उसको एक क्रिएट किया गया, ठीक है, उसकी ड्राइंग की गई, उसके बाद उसको क्रिएट किया गया, अब उसके ऊपर अब उसकी मूवमेंट तो हो नहीं रही थी, अब उसकी मूवमेंट के लिए उन्होंने उसके ऊपर एनिमेशन क्रिएट की। एनिमेशन के थ्रू उसको बताया गया कि उसने किस वक्त कौन से हैंड को अपने मूव करना है, किस वक्त उसने अपनी आईज को मूव करना है, किस वक्त उसने अपने फेस को मूव करना है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है कार्टून्स के अंदर वो किसके थ्रू होती है, एनिमेशन के थ्रू होती है। यहाँ पर वो आपको बताएगा कि पिक्चर कैन बी इजीली मॉडिफाइड नाउअडेज ऑन अ कंप्यूटर टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिल्म। अब क्या होता है कि हम लोगों को कौन सी पिक्चर चाहिए होती है, ठीक है, पहले तो हम लोग ड्रॉ करते थे और अगर हमारे से ड्रॉ सही नहीं होती थी तो वो क्या होता था कि हम लोग रिजेक्ट कर देते थे, फिर हमें दोबारा ड्रॉ करनी पड़ती थी। अब क्या होता है कि हम इंटरनेट से ही बहुत सी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर के ऊपर ही इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर वो हम लोगों को मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू ना अच्छी लगे कि हम लोगों को ऐसा करेक्टर नहीं चाहिए था, हम लोगों को थोड़ा चेंज करेक्टर चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे उधर ही रिमूव करके उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड इज स्पेशल इफेक्ट। अब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर स्पेशल इफेक्ट भी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अपनी पिक्चर्स के ऊपर भी इफेक्ट लगाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो मूवीज हम लोग क्रिएट करते हैं, जो फिल्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर भी हम लोग स्पेशल इफेक्ट लगा लेते हैं, सच एज द अपेयरेंस ऑफ अ बैटल। जैसे कि हम लोग बैटल की अपेयरेंस सीक्वेंस वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने सीक्वेंस रखना है बैटल के अंदर। एंड अर्थक्विक के अंदर कैसे रखना है, और अ फायर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि फायर भी क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर के थ्रू। These special effect can also be combined with real sense and character when needed. तो हम लोग क्या करते हैं कि ये स्पेशल इफेक्ट किसी भी वक्त कंबाइन कर देते हैं रियल सीन के साथ, यानी कि जो हमारे पास रियल सीन होते हैं उनके साथ, इन करेक्टर व्हेन नीडेड। और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उन करेक्टर को क्या करते हैं, उन स्पेशल इफेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, हैव एनी क्वेश्चन? If you people have any question, then ask from me in a chat box. I will answer your question. If anyone have any question, ask in a chat box. I will answer your question. Nobody have? If everything is clear, then react with thumbs up. Everything clear in this lecture, then react with thumbs up. Okay. Now this is your homework. Note down your homework. Take out your copies and note down your homework. You have to do this. मैंने आपको कंप्यूटर का यूज जो स्कूल में बताया था कि क्या है, बट अब आप लोगों ने आंसर देना है हाउ आर कंप्यूटर इज यूजफुल इन आवर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर का यूज क्या है, व्हाई कंप्यूटर इज यूज इन योर स्कूल लाइब्रेरी। Here is a note, you can use internet for your help. You can take help from internet also, okay? Now this is your homework. Best of luck.